काफी कुछ है करने को, लेकिन कोई न्यू True. पर्सन को अगर मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कुछ सेल्स, क्योंकि सेल्स टर्म है तो उनको लगता है कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ये, या कुछ सेल्समैन Agreed. टाइप है। तो ऐसा कुछ Agreed. फील Agreed. होता है। तो और मेरे True. को भी इनिशियली ऐसा ही फील हुआ था जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को रेफर किया था कि हाँ। Hi Sachin, welcome to the Sales for Testing guy. How are you? या गुड एंड यू? I am very fine, Sachin. Thanks for asking. And Sachin, you already know that the agenda of today's podcast is like a person who just want to start their career into the field of Salesforce development. Like Salesforce is one of the buzzword that is trending everywhere in LinkedIn, like Salesforce jobs, Salesforce admin, Salesforce business analyst. But at the end, as a fresher, how love Salesforce development. So, in order to start this podcast, I just want you to please so that they have a better insight about you, like what are you actually doing, how many total of years of experience you have currently in your hand. So over to you. Yeah, so thanks, Gandharv, like for inviting me here. I'm glad to be here. So my name is Sachin, and I have been doing Salesforce development since last 3.5 years. Okay, So that's yeah, great. so that's it from my side. So I'm a Salesforce working as a senior Salesforce developer. Okay. So at an initial level, when you have started your journey, like you were also a fresher at that moment in time. So Yeah. at that moment in time, you have faces lots of tough time. At an initial level, you don't have a penny idea about like what is actually Salesforce. So how you Yeah. get to know like what is actually Salesforce? Yeah. So there is like a funny incident behind it. So one of my friend referred me like I was searching for a job and I was preparing for Android technologies. Okay. So he called me and he said like, why you can't lie? Why you should not try in Salesforce? So I said like, Okay. what is Salesforce? Because whenever we heard about Salesforce, we think like we have to sell something. Because Agreed. as a fresher, like we think like we have to sell something. So I clearly said like, what is Salesforce and do I need to do coding or do I need to sell something? True, So true, he true. said like, first like you can give the interview in Salesforce, and if you are comfortable, then you can go ahead. Otherwise, you can try in Android. So I said, Okay. okay. So this is how I started my journey, and I gave interview in Cloud Certitude, Gurgaon. Okay. Okay. It's a After that, like I gave interview and I selected over there. Like so, within 2 or 3 days, I got to know that like Salesforce is very good technology, and we can grow career in Salesforce. Because I saw my seniors over there, and they were earning around good amount of salary. okay. So True, I true. thought like, oh, I'm in a good place, and I started learning Salesforce then. Yeah, so this is how I started my journey. इवन वन ऑफ द मेमे लाइक एक मेमे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है लिंक्डइन पे और फेसबुक पे इस समय लाइक सेल्सफोर्स समझ के क्या सेल्समैन समझाया क्या मैं तो सीआरएम है सो Yeah, एट एन इनिशियल लेवल फ्रेशर को नहीं पता होता कि है क्या बिकॉज इसका रीजन ये भी हो सकता है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से या अभी तक जितने ही मैंने पॉडकास्ट किए हैं सेल्सफोर्स के इंडिविजुअल्स या पर्सनल्स के साथ तो सबने यही चीज कहा है कि अगर आपके सब्जेक्ट में सेल्सफोर्स नहीं है तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा yeah. So that's why I said like whenever anyone asks to me like क्या कर रहे हो आप, तो मैं Salesforce में हूँ, तो वो क्या बेचते हो? ओके पता नहीं रहता है Salesforce का सुन के हाँ कुछ तुम बेचते हो, किसी का नहीं रहता कि तुम अच्छा कोडिंग करते हो, कोई न्यू पर्सन के ट्रू लिए। ऑब्वियसली तो Salesforce में उनको पता है कि Salesforce में काफी कुछ है करने को, लेकिन कोई न्यू ट्रू पर्सन को अगर मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कुछ सेल्स, क्योंकि सेल्स टर्म है तो उनको लगता है कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ये, या कुछ सेल्समैन एग्रीड टाइप है। तो ऐसा कुछ एग्रीड फील एग्रीड होता है। तो और ट्रू मेरे को भी इनिशियली ऐसा ही फील हुआ था जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को रेफर किया था कि हाँ, मैं बोला भाई कुछ बेचना है क्या? आई क्लियरली आस्क्ड लाइक कुछ बेचना है। ट्रू सो दिस इज हाउ ये आई स्टार्टेड माय जर्नी। या ट्रू ये जो आपका फनी इंसिडेंट के थ्रू लाइक यू हैव स्पेंट अराउंड 3.5 years experience and it's a very good experience like definitely you are handling a team in your current organization also for the same if I'm not wrong yeah या so like इन ऑर्डर टू मैनेज टीम जब हम किसी भी टीम को मैनेज करते हैं फॉर एग्जांपल हम फ्रेशर से एक्सपीरियंस जब तभी बनते हैं जब हम अपने फेलियर्स और सक्सेस दोनों को मेजर करके चलते हैं या आई डेफिनेटली एग्री विद यू। या फॉर एग्जाम्पल नाउ अब आप फ्रेशर्स को भी जाहिर सी बात है हैंडल कर रहे होंगे आप इंटरव्यूज भी लेते होंगे फ्रेशर्स का सो जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में या सेल्सफोर्स में अपना करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस मोमेंट इन टाइम पे जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप किन पॉइंट्स को टेक केयर करते हैं कि यार ये पर्सन जो है ना फ्रेशर ये सेल्सफोर्स के लिए बेस्ट फिटेड है एज ऑफ नाउ
So I always like process one follow. Either I'm taking interview for a fresher or either I'm taking interview for experienced person. So first I ask the question to a candidate like what you have learned in your like if the person is experienced, so what you have learned in like last 2 years or like 3 years, Okay. or if it is a fresher, so I ask them like so what you have learned in last 6 months. So accordingly, like so what I think that let's say he doesn't like for if I am taking a interview of fresher, right? Okay. So like let's say he haven't worked on batch class, and Okay. I'm asking the question related to batch class. It doesn't make any sense, right? So what True. I asked on my first question always is like what you have learned, and accordingly I ask the questions. Like if person is Okay. haven't worked on integration, so I can't ask the question related to those questions because if he haven't worked on those topics, so how I can ask the questions? Definitely, definitely. It means you basically focuses on the learning part that a person उस person ने पहले learn क्या किया हुआ है, किन किन हाँ points को उसने सीखा है ताकि मैं उससे उस चीज को निकाल सकूं जिससे उसको ये पता चल जाए कि actual reality क्या है कि आपको करना कैसे है. So it is very 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 good point that you have always taken care of when you आप जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हो. लेकिन एक फ्रेशर लेवल पे जो सबसे बड़ा मेरे पास क्वेरीज आती हैं ऑन डेली बेसिस फ्रॉम दी फ्रेशर्स लाइक कि भैया हो क्या रहा है मेरे साथ कि ना मैं सेल्सफोर्स में एंट्री कर रहा हूँ, मुझे जॉब भी मिल रही है, मेरे को ना ऑफर लेटर हाथ में आ गया, बट ना नीचे लिखा हुआ है 2 साल का बॉन्ड. तो सो देखो फ्रेशर का माइंडसेट देखो यही रहता है कि वो मेरे को उसमें कोई बुरा भी नहीं लगता कि चलो ठीक है कि तुम 2 साल का बॉन्ड कर सकते हो साइन, इवन मैंने भी किया था, तो इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है क्योंकि देखो एज ए फ्रेशर तुम्हारा क्या फोकस होता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या तुम्हें जैसी भी जॉब चाहिए, तुम्हारा पहला फोकस ये रहता है कि तुम्हें जॉब चाहिए. इवन यही रहता है कि मेरे को कैसी भी एक बार जॉब मिल जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी में मिल जाए और सेल्स फोर्स में मिल जाए तो और ज्यादा बेटर है. तो बहुत मेरा भी यही बढ़िया. था एज ए फ्रेशर के जब मेरे को जॉब मिल रही है तो ठीक है कि मैं बॉन्ड भी साइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का ही है क्योंकि टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगा, मतलब कि 2 साल मेरे कब निकले मुझे मालूम भी नहीं पड़ा. डेफिनेटली तो इट्स ऑल अबाउट सेम है कि लर्निंग एंड अगर हाँ तो एज ए फ्रेशर पहले बात में तो कोई लगता है कि आप एक तो अपनी ईगो साइड में रख दो आप कि आपने एमसीए किया है या आपने बीटेक किया है. कई लोगों को जैसे मैं सुनता हूँ कि मैं 10,000 रुपए की जॉब करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप इवन आप मतलब आपको अगर फ्री में भी काम करने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टार्ट किया था. मैंने मेरी सेल्स फॉर्स जर्नी में मतलब मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कुछ नहीं मिलता था. ओके. लेकिन एक मतलब माइंडसेट ही होता है सबका कि तुम्हें, क्योंकि उस टाइम अगर आज भी हम देखें तो हमारी सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग कितना, अगर 35 to 40,000 में पे करना पड़ता है अगर किसी को सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग लेनी है. तो आप यस ये भी सोच यस. सकते हो कि मैं अगर कुछ पे भी तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो अगर मैं पे भी तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो उस वे में अपना करके कर सकते हो. तो आप कभी ये मत सोचो कि मैं 5,000 की जॉब क्यों करूँ या 10,000 की क्यों करूँ, क्योंकि जनरली ट्रेनिंग पीरियड पे लोगों को इतना अमाउंट मिलता है इन इंडिया. यस. मतलब और बेसिकली कोई जगह हाँ तो उस बेसिकली ये है अकॉर्डिंग कि जितनी भी हाँ तो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कोई कहती है कि वी आर रेडी टू पे यू एट एन इंटर्नशिप अराउंड 8,000, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे बड़ी होती है वो कहती है 10,000. एंड उसी तरीके से उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है. हाँ सो तो उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मतलब मेरे को लगता भी नहीं कि उनको कुछ ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि पहला उनका फोकस यही होना चाहिए कि उनको जॉब लेनी है और आप जॉब ले लो. उसके बाद आपकी, मैं ये मानता हूँ कि आपकी स्किल्स के ऊपर है. आप कभी भी यस मतलब अगर आप जो मतलब स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो आप मतलब पैसे की तरफ मत जाओ कि आपको कितना मिल रहा है. अगर आप में स्किल्स हैं तो आप आगे चल के काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो. सेल्स फोर्स में तो कुछ ज्यादा कर सकते हो क्योंकि सेल्स फोर्स का यस आपका मालूम है सेल्स फोर्स किस लेवल पे चल रहा है. तो मैं यही सजेस्ट यस करूंगा यस. कि मतलब कि मतलब जब भी आप फ्रेशर कोई है तो अगर वो जॉब देख रहा है तो पहली बात तो मतलब कि सैलरी माइंड से निकाल दे. बस खाली फोकस करे कि मेरे को जॉब करनी है और मेरे को लर्न करना है एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर. और अगर आपको, और मेरा तो ये परसेप्शन मतलब वो हट चुका है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर आपको हार्डवर्क करना है, 2 ईयर करना है, आपको जब तक ग्रोथ करनी है आपको जब तक हार्डवर्क करना पड़ेगा. मेरे को आज तक ग्रोथ करनी है तो मेरे को आज भी हार्डवर्क करता हूँ मैं. तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली. आपका हार्डवर्क छूट जाएगा. तो वो माइंड से बात निकाल दो कि फर्स्ट ईयर को हमको खाली हार्डवर्क करना है, सेकंड ईयर हम चिल मारेंगे. तो वो डिपेंड करता है अगर आपको, और जैसे जैसे और लोग हैं जैसे जो 10 to 6 जॉब करते हैं, अगर आपका भी वही है कि चलो ठीक है मेरे को 10 to 6 जॉब करनी है, उसके बाद मेरे को अपने ओके. पर्सनल लाइफ जीनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग जॉब करो. लेकिन हर किसी के गोल्स अलग होते हैं. तो जिसका डेफिनेटली. जैसा गोल है उसको वैसे करना चाहिए. जैसे मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे को भाई, मेरे को ये चाहिए कि बस मेरे को ग्रो करना है और मेरे को जल्दी ग्रो करना है. मेरे को मतलब 40 तक जॉब नहीं करनी या मेरे को 45 तक जॉब नहीं करनी. तो मैं उस अकॉर्डिंग काम करता हूँ. मैं कभी मेरा माइंड में कभी ये नहीं होता कि मैं 10 to 6 जॉब करूंगा. मेरे को जब ओके. टाइम मिलता है, मैंने आज वीकेंड पे आज भी काम किया है. तो ऐसा कुछ सो नहीं है. अगर आपको आपको स्किल्स एक्वायर डेफिनेटली. करनी है, अगर आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आपको औरों से अलग काम भी तो करना पड़ेगा.
आप सब Definitely. जैसे 10 to 6 जॉब कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ अलग अच्छा होगा, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? बिल्कुल नहीं हो सकता. इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन हार्ड वर्क, योर अप्रोच टुवर्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर प्रोएक्टिवनेस, एंड नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड यू हैव मेंशनड अ वेरी ग्रेट पॉइंट, लाइक if you think that you can work from 10 to 6 and still you think यार मेरा कुछ हो रहा है और मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे दिया गया है, so at that moment in time फ्रेशर को तो वो एक मिथ बन जाएगा उसमें कि यार ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी. सो इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि अगर आप प्रोएक्टिव हैं, अगर आप में एक डेडिकेशन है, आप थोड़े कीन ऑब्जर्वर है काम को लेके कि यार मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ले सकता हूँ, सो उसका रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि कुछ भी कर सकते हो. आपके इस यस. पॉइंट से फ्रेश तो ये पॉइंट बहुत एक सीखने के लिए मिलेगा जो हाँ, आपने मतलब इस. मेरा यही रहेगा कि अगर अगर आप फ्रेशर हो तो आप मतलब माइंड से निकाल दो मेरे को 10 to 6 जॉब करनी है. आप ये सोचो कि मेरे को कितना लर्न करना है, क्योंकि ये एज आपकी लर्न करने की है, और जितना आप लर्न इस टाइम करोगे उतना ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा उस बेसिस पे. अगर आपकी ओके. परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में खराब रही तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता. तो आप बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसा लेके चलो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे हमेशा, कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट ये बूस्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट, बिकॉज अगर आपका मोरल हाई रहेगा तो देन ओनली आपको अगर कोई प्रोजेक्ट अगर कॉम्प्लेक्स भी मिलता है तो आप कर लोगे कि हाँ यार अगर करना है तो मैं कर लूंगा यार, मेरे को डिपेंडेंसी बना के चलनी है कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके क्योंकि से है. देखो देखो सेल्स फोर्स या सेल्स फोर्स है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, देखो डेवलपमेंट अगर आप 50 ईयर्स तक भी करते हो तो वो मतलब उसका एंड नहीं है. आपको ट्रू. फिर भी नई चीज मिलती रहती है. तो इस ट्रू. अकॉर्डिंग मतलब आपको आपने कुछ स्किल्स अपनी एक्वायर कर ली, कि आपको कोई काम मिला आपने कर दिया, कोई आपको कुछ भी काम मिला आपने कर दिया, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस मतलब हाई रहेगा कि चलो ठीक है, मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट दे दो मैं कर लूंगा काम, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा. डेफिनेटली तो डेफिनेटली. मतलब ऐसे आप काम कर सकते हो कि हाँ कब मैं एज ए फ्रेशर आप कभी मत सोचो. पहला पॉइंट तो ये है कि आप कभी पैसों की मत सोचो. सेकंड पॉइंट ये है कि आप 10 to 6 का माइंडसेट निकाल दो अगर आपको ग्रो करना है तो. अदरवाइज आपको डेफिनेटली. लगता है कि चलो ठीक है मेरे को और जैसे रहना है, आपको 40 ईयर्स तक जॉब करनी है, 50 ईयर्स तक जॉब करनी है, तो आप कर सकते हो. उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं मानता उसमें. हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है. किसी को पर्सनल लाइफ चाहिए और पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए डेफिनेटली. कि खाली बस मेरे को पहले मेरे को ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद में मेरी ओके. पर्सनल लाइफ. तो हर किसी का अपना अपना गोल होता है. अगर आपको लगता है कि ओके. मैं चूंकि मेरे को जॉब सही लगती है, मेरे को पर्सनल लाइफ जीनी है, तो आप करो 10 to 6, कोई दिक्कत नहीं. ट्रू ट्रू, ये आपने बहुत बड़ी पॉइंट एक बोल दिया है कि 10 to 6 में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिथ होता है कि यार ये चीज मैंने भी अपने टाइम पे जब व्हेन आई वाज अ फ्रेशर हमारी क्लास में भी यही चीज को लेकर डिस्कशन होता था कि यार हम काम वो करेंगे जब पैकेज अच्छा मिल जाए और ना हमें ना स्ट्रेच ना करना पड़े. सो हम्म. कहीं ना कहीं वो मिथ बन जाता था, तो उससे क्या होता था कि फिर हमारा ध्यान ना मोनेटाइजेशन की तरफ ज्यादा था. ऑल द मॉनेटरी फैक्टर इज वन ऑफ द की जो हमेशा माइंड में रहती है, बट समवेयर अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो आपको आपके मतलब का काम जो आपको पैशनेट बना रहा है उसके लिए, सो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए आपके इन पॉइंट. एंड डेफिनेटली लाइक एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन एज अ फ्रेशर, लाइक अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने एक पॉइंट ये चीज बोली है कि मैं ये देखता हूँ कि उसने लर्निंग क्या की है, क्योंकि लर्निंग के बेसिस पे मैं उससे पूछूंगा और उसकी क्या लर्निंग में क्या प्रोग्रेस रही थी, क्योंकि प्रोग्रेस के बेस पे ही पता चलता है कि वो कीन लर्नर है कि नहीं है. बट समवेयर आज के टाइम पे क्या होता है कि सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में लिंक्डइन पे आपने ही बहुत देखा होगा कि सब ये डाल रहे हैं कि एडमिन सर्टिफाइड हो गया, PD1 हो गया, PD2 हो गया, तो सर्टिफिकेशंस का लेके एज अ फ्रेशर अगर आपको किसी को गाइड करना हो तो आपकी क्या है इसमें परसेप्शन है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट. लाइक फॉर ए फ्रेशर आई विल नॉट सजेस्ट कि लाइक उसको कोई भी पैसा सर्टिफिकेशन में देना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर हम्म. लेवल पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं पूछने वाला है. तो आप हम्म. फ्रेशर लेवल पे खाली इतना फोकस करो कि आप लर्न कर रहे हो, सेल्स फोर्स के बारे में पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होता है कि वो 10 to 12 thousand स्पेंड कर सकता है कोई भी सर्टिफिकेशन पे. तो बेटर है कि ट्रू. आप सर्टिफिकेशन स्टार्टिंग में ध्यान ही मत दो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो आपको बिना सर्टिफिकेशन के जॉब दे रही है. जब आप एक यस. लेवल पे पहुंच जाओ 1 or 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, तो आप अपनी सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हो. जब आप अपने एटलीस्ट आप अपने पैरों पे खड़े हो, तब एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो उस चीज को. ट्रू. एंड इवन क्योंकि मैंने बहुत. वो फैमिली के लिए बर्डन हो जाता है ना, क्योंकि आपको ही मालूम है कि किसी के लिए आज के टाइम में भी 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है किसी की फैमिली के लिए. तो ट्रू. उनको अपनी फैमिली पर खर्च करना पड़े कि मेरे को सर्टिफिकेशन करनी है, उसकी नीड ही नहीं है. अगर आप फ्रेशर हो, आप सिंपली आप लर्न करो और आप इंटरव्यू दो और आप सिलेक्ट हो जाओगे. ट्रू ट्रू डेफिनेटली. एंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग हम कुछ इस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक फ्रेशर है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय, जहाँ पे उसकी एक मान लीजिए एज अ फ्रेशर वो सिलेक्ट हो गया. सो हम्म. सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय के बूम कर गया है इस समय, और उसने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉयज को जिनको उन्होंने हायर किया था एज अ फ्रेशर, अब उनको एक्सपीरियंस होने के बाद ये बोल दिया कि आप करिए,
हम रीएम्बर्समेंट आपको कर देंगे, तो जिससे उनको बेनिफिट भी हो जाएगा एक एट एन एक्सपीरियंस लेवल पे। तो ये चीज से हाँ भी एक बहुत चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो खुद सर्टिफिकेशन करवाती हैं। तो ट्रू। आप मतलब यस। पहले ही पैसा क्यों लगा रहे हो अपना, जब आपको बहुत सारी कंपनी जो आपको सर्टिफिकेशन ऑलरेडी करवा सकती हैं आगे फ्यूचर में। और फ्रेशर के मतलब मेरे को लगता है फ्रेशर एट फ्रेशर लेवल आपको कोई भी सर्टिफिकेशन की नीड है, आप मतलब आपको इवन मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू लाइक सर्टिफिकेशन इज लाइक नॉट नेसेसरी फॉर एट ए फ्रेशर लेवल। True, true, true. And this is the one of the important question for this podcast from the perception of like fresher कि यार जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वी नीड मिनिमम 50 ट्रेल हेड बैचेस, क्योंकि बहुत सारे जेडीज में ये चीज लिखी होती है। आई थिंक लाइक कंपनीज का उनसे रिलेटेड मैं यही समझ सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे, तो उनका ये होता है कि अगर उसने बैचेस कंप्लीट कर रखे हैं इट मींस उसने लर्न किया है कुछ। तो यस, यस। उस पॉइंट से हम रिलेट कर सकते हैं कि बैचेस को हम लर्निंग से जोड़ सकते हैं कि हाँ अगर उसने 15 बैचेस किए तो इट मींस उसने कुछ पढ़ा होगा, उसने क्वेश्चंस को टिक किया है, तो उसको बैचेस मिले हैं वो। तो मे बी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको उनको बैचेस करने चाहिए। बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग मैं नहीं मानता कि किसी के पास ज्यादा बैचेस हो तो उसने बहुत अच्छी लर्निंग की है, और जिसके पास ट्रू। बैचेस नहीं है तो उसने लर्निंग नहीं किया। इवन मेरे पास अगर मैंने कभी बैचेस वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया बदले में, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। डेफिनेटली। तो दैट इज हाँ, व्हाई लेकिन यू आर फ्रेशर हियर। लेवल पे, हाँ तो फ्रेशर लेवल पे आई विल सजेस्ट कि आप बैचेस करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती हैं। अदरवाइज अदरवाइज आप उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते उसमें। तो बेटर है आप बैचेस ट्रू। तो कर लो, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उसको यस। यूटिलाइज करो और बैचेस कंप्लीट कर लो एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन खाली तुम अपने पॉइंट्स पे ध्यान मत दो कि हाँ बैचेस कंप्लीट करने हैं, उसमें मतलब मत रखो। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रेशर लेवल पे सेल्स फोर्स पे, आप खाली उस पे फोकस करो, उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, ना कि बैचेस पे ध्यान दो कि आपने कितने बैचेस करें। Okay. It means always focus on the quality instead of quantity, because हम्म। quality से ही आपको चीजें पता चलेंगी। आप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैंने बहुत देखा है कि 12 क्रॉस डेवलपर और इन एक्सपीरियंस 2-3 साल, कभी कभी मेरे मन में भी क्वेरी आती है कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे एक मिथ भी बन गया है, और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं वो मिथ को भी दूर करना चाहता हूँ आपके हेल्प से, कि डम्स के भरोसे कभी चीजें नहीं होंगी, डम्स से कभी आप लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि डम्स अवेलेबल होते हैं, सब डम्स के थ्रू कर देते हैं, और फिर ये चीज मैंने भी लाइव देखी है। और क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू जब आप करेंगे तो वो आपको एक लॉन्ग रन में एक आपको हमेशा देगी, क्योंकि अगर किसी ने जो प्रैक्टिकली किया होगा तो वो उसको बता भी पाएगा कि आप ये इसको करो फिर इसको करो, आपको एक पाथ मिल जाएगा सामने वाले से, एक एज एन मेंटरशिप में भी। बट अगर आप डम्स के थ्रू करोगे आप क्रैक तो कर लोगे, बट उसका समवेयर आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट आपके रेज्यूमे पे आ जाएगा कि यार मैं 1 क्रॉस सर्टिफाइड हो गया। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो आपको ही मालूम है कि वो चीज के आज के टाइम पे सर्टिफिकेशन कैसे हो रही है, जो सेल्स पोस्ट में है उनको ऑलरेडी मालूम है कि सर्टिफिकेशन लोग कैसे कर रहे हैं। यस। 90 टू यस। 95% लोग डम्स यूज करते हैं और सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। यस। तो इसलिए मतलब अगर आपको मतलब कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ मतलब जॉब के रिगार्डिंग, मैं मतलब मुझे सर्टिफिकेशन कितनी नीड नहीं लगती, इवन आज के टाइम में भी नहीं लगती है कि सर्टिफिकेशन आपको करनी चाहिए। क्योंकि रियलिटी ओके। में आपको भी पता है कि सर्टिफिकेशन कैसे हो रही है, कंपनीज को भी यस। पता है। तो एट दी एंड यस। आपकी नॉलेज काम आने वाली है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काम आने वाली है कि आपको काम कितना आता है। अगर किसी बंदे ने 10 सर्टिफिकेशन कर रखे हैं और उस पर वो इंटरव्यू में उसका मतलब उसका इंटरव्यू नहीं अच्छा गया क्योंकि उसके प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, तो सर्टिफिकेशन फिर किस काम के। लेकिन हाँ ट्रू। मतलब मैं नहीं बोलूंगा सर्टिफिकेशन को, मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा कि नहीं जरूरी है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको काम आने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ओके। करो, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू करो, ना कि डम्प से करो। ताकि एटलीस्ट आपको भी अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ मैंने डम्प से नहीं करे हैं, एटलीस्ट आप में कॉन्फिडेंस रहेगा वो कि हाँ मैंने ओके। खुद से किया है ये, ना कि मैंने डम्प से यूज करके किया है। क्योंकि वो ओके। चीज की रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है सर्टिफिकेशन के टाइम पे। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ और मैं किसी से पूछूंगा आपने कितने सर्टिफिकेशन किए हैं, तो मेरे माइंड में यही आएगा कि उसने डम्स यूज किए होंगे, क्योंकि चल ही यही रहा है, ट्रेंड चल गया है कि डम्स यूज करो और सर्टिफिकेशन क्लियर करो। True, true, true. And this is the last question of the podcast as of now. Like for example, although we are not Gyanis and Babas, like कि हम किसी को advise करें, but you know, as an experience holder, we are here in order to giving back to the community. Like कि जो भी person Salesforce में अपना career बनाना चाहते हैं, like either in admin is the first, जिसमें सबसे पहले you know हम प्रोसेस बिल्डर फ्लोज ये सब चीजें जो हम सीखते हैं बेसिक लेवल पे, ट्रेल सेल्स फोर्स की org क्या है, सब कुछ क्या है, और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट में आते हैं एज एन, जब हम फ्रेशर के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ते हैं। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि उसके पास, यानी कि किसी भी फ्रेशर्स के पास, वेदर ही और शी वांट्स टू स्टार्ट देयर करियर इनटू द फील्ड ऑफ सेल्स फोर्स, सो उसको क्या क्या प्री कंडीशंस को मैच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बोथ लाइक टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज यू नो नॉन टेक्निकल स्किल्स?
So like if anyone wants to start their career in Salesforce, either it's admin or either it's development, so first Yes. step always will be like you have to learn admin part. Either you are a developer or either you are an admin, you have to learn first like admin part, because admin Okay. is a, you can say, core of Salesforce. First you have to like a admin. Through admin we can learn how Salesforce works, like how we can how we use the fields, how we can create the process builder, how we can create the workflow. These are the things we learn in admin parts. And Okay. most importantly, like even you are a developer, you should know about the securities, which is also the part of admin, right? True. So like we have a lot of like we have a like type of security in Salesforce. I will not explain those things, but yeah, you should Okay. learn about first like admin, Salesforce admin, and then you should move to Salesforce development. And one thing I will suggest to anyone, if they have any capability, like if they think like they can do the code, so they should not go for Salesforce admin, because in Salesforce admin like हमारे पास जॉब काफी मतलब जॉब का स्कोप काफी कम है। मतलब Okay. अगर आप खाली Salesforce एडमिन हो, तो जो मुझे लगता है Salesforce डेवलपर, तो मतलब आपके पास Salesforce, अगर आप खाली Salesforce एडमिन हो तो आपके पास जॉब भी कम है, आपके पास ग्रोथ भी कम है। तो बेटर है Okay. कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर डेवलपमेंट सीख सकते हो या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा अपना हार्डवर्क करके, तो आप Hmm. बेटर है कि आप उस वे में जाओ कि आप डेवलपमेंट में जाओ। उसके बाद आपको कंसल्टेंट बनना है, जो भी बनना है, आप पहले डेवलपमेंट करो, उसके बाद आप कंसल्टेंट बन सकते हो, या जो भी आपका गोल है। मतलब मैं True. सजेस्ट True. नहीं करूंगा कि आप सेल्सफोर्स एडमिन में जाओ अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल ही आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप सेल्सफोर्स एडमिन में जा सकते हो। बट Okay. आज के टाइम में ये रियलिटी है कि सेल्सफोर्स एडमिन के स्कोप काफी कम है, लिमिटेड जॉब्स हैं। तो बेटर है कि आप उस फील्ड में जाओ जहाँ पे जॉब काफी सारी हैं, और जहाँ पे आपको सर्च करने की नीड नहीं है, आपके पास खुद कंपनी जाएंगी कि हाँ ठीक है, उनको नीड है और आप जा सकते हो। True, true, true. And thank you so much, Sachin, for joining and sharing your valuable time and sharing your key points also. Like it means a lot for me and my channel, that is Sales for Testing Guy. And जो भी आपने points किए हैं वो definitely freshers को help भी करेंगे. And even I have mentioned your LinkedIn ID on the comment section कि अगर किसी भी freshers को in terms of sales for development idea चाहिएगा कि कैसे मुझे start करना है, so he or she will definitely reach out to you. So So at the as end, I we will like sorry to interrupt you, but the thing is no that no like no, as we are doing the uh, podcast for freshers, like yes. so I will add one point for interviewer who is watching our podcast. So I will suggest them like whenever we take any interview for fresher or an experienced person, so पहले Hmm. हमें उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या किया है। हमको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है उसे कि हमने क्या किया है, कि उसने अगर इंटीग्रेशन नहीं करी है फॉर एग्जांपल, True. तो आप उससे उससे रिलेटेड मत पूछो। Okay. अगर आपको उसकी स्किल्स देखनी है, तो आप जो वो बोल रहा है, आप उससे रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। अगर वो उसमें कैपेबल है, तो आगे चल के अगर आपको इंटीग्रेशन का हो तो वो भी कर लेगा। Okay. That's तो perfect. एटलीस्ट आपको मतलब कि ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो जो उसने लर्न किया है आप उससे वो पूछो, ना कि आप उस पे अपनी नॉलेज दिखा रहे हो कि हाँ तुम ये बताओ वो बताओ। जब उसने नहीं किया है तो कैसे बता सकते हैं। और क्योंकि ये True. मैंने चीजें देखी हैं काफी, जो इंटरव्यूअर करते हैं कैंडिडेट से, और मेरे को नहीं लगता कि वो करनी चाहिए। जो उन्होंने नहीं Okay. करा है, तो आप उससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। Okay. Okay, that's true. Definitely ये जो अपने लास्ट में पॉइंट बोला है, ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड पॉइंट भी है एक तरीके से, क्योंकि किसी को भी मतलब पूछा ना जाए कि अगर यार आपने किया क्या है, उसमें से उसकी स्पेशलिटी निकाली जाए, तो उसका एक्सपीरियंस निखर के सामने आएगा। अगर जो चीज उसने की नहीं है, अगर वो उसमें एफर्ट्स डाल रहा है, तो वेल एंड गुड है। अगर उसमें वो अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा, समवेयर वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज वहीं से करेगा। सो डेफिनेटली जो भी आपने जो पॉइंट्स बोले हैं, काफी बोल्ड तरीके से मतलब बताए हैं कि ये चीज होनी चाहिए फ्रेशर्स के परसेप्शन से, ताकि एक जो मिथ है ना, वो चीजें खत्म हो जाए, मिथ सारे फैक्टर में बदल जाए कि फैक्ट्स ये है, बिलीव इन रियलिटी है। क्योंकि देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू लेते हैं हम देते हैं, जब हम फ्रेशर थे, जब हम देते थे, यस। तो हमारे लिए यस। वो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम एक डेफिनेटली। लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे लिए चलो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए वो बहुत जॉब इंपॉर्टेंट है। और आपके एक डिसीजन से उसका वो करियर पता नहीं कहाँ मूव हो सकता है, क्या पता वो डेवलपमेंट छोड़ दे, या क्या पता वो ट्रू। कोई और फील्ड में चला जाए। तो इससे बेटर है ट्रू। कि आप उसको लर्न किया, आप उससे पूछो, अगर वो कैपेबल है उस चीज में, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि अगर वो उसने वो चीज सीखी है, तो आगे वो और भी चीजें सीख सकता है। Definitely, definitely. And thank you so much, Sachin, for joining. And it means a lot